Hello students. In this chapter dynamics of rigid bodies, we discuss about rigid bodies. So in this chapter, first we discuss about motion of rigid bodies, how rigid bodies rotate, and other things. So it required six generalized coordinate. It requires six generalized coordinates. Six generalized coordinates is required for the specification of specification specification of their configuration. इनके configuration को specify करने के लिए हमें six generalized coordinate की ज़रूरत पड़ेगी. So this is basic thing you know. So general displacement की बात करेंगे जब हम general displacement of rigid bodies. General displacement of rigid body, it is a combination of translation and other is rotation. Rotation, all axes rotate, and translation one point to another point. So that is a basic thing. See generalized coordinate for specification of their configuration, and general displacement of rigid bodies, combination of translation and rotation. So next we discuss about rigid body. Rigid body. What is rigid body? A body is said to be rigid if relative position of parts of the body remains unchanged. uh, मैं लिख देता हूँ उसे. A body is said to be rigid if the relative position of parts of the body uh, remains unchanged. uh, Remains unchanged when remains constant during motion the body. uh, मतलब whole body moves as a whole body moves. So if the relative position of body is said to be rigid if relative position of parts of the body remains unchanged during motion the body as a whole body moves. In a simple language, we also define as, or a simple language, a system. It can be also considered a system consisting of a large number of particles. कोई सिस्टम है, a system consisting a large number of particles. वो particles किस तरह से होंगे? Such that the distance between pairs of particles remain constant. इसी के ऊपर हम बात करेंगे. जैसे कोई रिजिड बॉडी हम बना लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही चीज़ तो कह रहा है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच दैट. कैसे? डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, लाइक यहाँ पर आई अर्थ पार्टिकल होगा, यहाँ पर जे अर्थ पार्टिकल होगा. सो इन दोनों के पेयर जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आई जे इज इक्वल टू सी आई जे.
ये आसान लैंग्वेज हो जाएगी। वेर आर आई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आयत एंड डिस्टेंस कहेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन आयत एंड जेथ पार्टिकल एंड सी आई जे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो रिजिड बॉडी हम समझ गए। अ सिस्टम कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस तरह से, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स, पेयर की जो होगी डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट। Next, we discuss about number of independent coordinates. Independent coordinates. Number of independent coordinates describe the position of a rigid body. हम rigid body की position कैसे describe कर सकते हैं? So rigid body in space. So basically, a rigid body in space defined as by the 3 points which do not lie on the same straight line. मतलब कोई भी 3 पॉइंट होंगे वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर होंगे। सो इस तरह से होंगे। हम रिजिड बॉडी को स्पेस में इस तरह से दिखा सकते हैं। सो ईच पॉइंट स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड। So total 9 coordinates are needed. 9 coordinates are needed to specify a rigid body. But those 9 coordinates are connected by 3 equation of constant. So ये 3 equation of constant से जुड़े होंगे। एक कुछ इस तरह से जुड़ा होगा, ये एक इक्वेशन कंस्टेंट, दूसरा ये, दूसरी ये और तीसरी है। तो कितने हो गए टोटल? 3 इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। 3 इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट ये क्या होगी? फर्स्ट है R12 इज इक्वल टू C12, सेकेंड R13 इज इक्वल टू C13, थर्ड इज R23 इज इक्वल टू C23। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लें, R11, R12, R13, R21, R22, R23, so basically R31, R32, R33। सो इस तरह से होगा। फर्स्टली तो ये नहीं हो सकते आई इज इक्वल टू जे आ रहा है इसमें, आई इज इक्वल टू जे आ रहा है, सो हमें आई डज नॉट इक्वल टू जे वाले देखने हैं। सो फर्स्ट हम R12 देखते हैं। R12 आई जे जे आई भी कर सकते हैं, ये 2 1 सेम है तो हमने इसका कर दिया 1 2 के साथ। R31 का हम R13 का हम 3 1 भी लिख सकते हैं, सो ये भी हो गया। लास्ट है R23, R32 भी लिख सकते हैं और पूरी मैट्रिक्स हमारी हो गई। सो 3 इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट आती हैं। सो हमें कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए से दिखाने के लिए? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, सो 3 चाहिए, बिकॉज 9 तो ये हो गए, 9 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं, 3 इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट माइनस कंस्टेंट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 6 आएगा, 9 माइनस 3 6। टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 6 जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए। So apart from the constant of rigidity, there may be additional constant on the rigid body. So additional भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें क्या आ सकता है? जैसे द बॉडी में भी कंस्टेंट मूव ऑन सरफेस, कोई बॉडी है मूव कर रही है सरफेस में, और इट मे बी अलाउड टू मूव विथ 1 पॉइंट फिक्स, कोई पॉइंट फिक्स कर दें उसी में ये बॉडी मूव करेगी। दिस एडिशनल कंस्टेंट विल फर्दर रिड्यूस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ये हटा देंगे, ये हट जाएगा एक, मतलब एक ही सरफेस में आपकी रन करेगी। सो देयर आर सेवरल वेज सेलेक्टिंग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हम सेवरल वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
मोशन को मैं समझा चुका हूँ, रिजिड बॉडी के फर्स्ट में समझा चुका था। अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक जो ट्रांसलेशन मोशन होता है रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी टू मोशन को ट्रांसलेशन मोशन होता है किस में, रिजिड बॉडी का मोशन की बात कर रहे हैं हम, रिजिड बॉडी मोशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है रोटेशनल रोटेशनल मोशन। सो ट्रांसलेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा। तो ट्रांसलेशन को हम कैसे बोल सकते हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी विल गिवन बाय द ट्रांसलेशन ऑफ एनी पॉइंट इन इट से द सेंटर ऑफ मास विच बिहेव्स लाइक अ सिंगल पार्टिकल इन मोशन। सो कोई भी ये है, ये सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए इसका। सो ये मूव करेगा लाइक अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल मूव करेगा, इसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन मोशन होगा। और रिमेनिंग आपके जो थ्री कोऑर्डिनेट होंगे, जो रिमेनिंग थ्री कोऑर्डिनेट रहेंगे, वो स्पेसिफाई करेंगे किसको, रोटेशनल मोशन को। सो थैंक यू इन दिस लेक्चर, दैट्स इट। सो थैंक यू।